Today we will do exercise 9.1 of chapter time. Here is the first question of exercise 9.1. Write the time shown in the figure in two ways. Two ways stands for one, we have to write the time in figures, then you have to write the time in words. Figures में जब लिखना होता है तो हमें आर और मिनट हैंड की पोजीशन से रिलेटेड नंबर्स को यूज करना होता है. फर्स्ट वी सी द small hand is between 5 and 6, so it has crossed 5, so it is 5 hours. Bigger hand is on 8, so it is 8 5s are 40 minutes. 5:40 is the time, 5 hours 40 minutes. Now how to write this time in words? Words में लिखना होता है तो whenever your minutes are more than 30, you write the time dash minutes to the next hour. कितने मिनट्स बची है नेक्स्ट आवर के लिए? हमारा नेक्स्ट आवर है 5 के बाद, आवर इज 6. Now how many minutes are left to reach 6? 40 मिनट्स हो चुके हैं तो माइनस कर दिया 20. So it is 20 minutes to 6. So this is the way of writing the time in words for when the minutes are more than 30. Let us see next one. 8:50 the time according to the clock. The positions are smaller hand on 9, just near 9, and bigger hand is on 10. So 10 5s are 50. 50 मिनट्स हो गए हैं यानी हमारी पोजीशन है मोर देन 50. सो यू विल राइट हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट टू द नेक्स्ट आवर. नेक्स्ट आवर 8 के बाद कौन सा है 9, तो 9 बजने में कितने मिनट्स बाकी हैं? तो 60 में से अब हम 40 माइनस करेंगे 10. सो 10 मिनट्स टू 9. दिस इज हाउ वी रीड द टाइम वेन एवर द मिनट्स आर मोर देन 30. आधे घंटे के बाद वाले टाइम को हम मिनट्स टू द नेक्स्ट आवर रीड करते हैं. नेक्स्ट सी पार्ट इज 5 hours 10 minutes. How to write in words? This time is less than 30 minutes. So how many minutes past the hour? 5 बजने के बाद कितने मिनट्स पास हो चुके हैं? This is how we are writing. So 10 minutes past 5. This is how we will write 10 minutes past 5. Next one 3:20. 30 मिनट से कम का वक्त है 20 minutes. So you will write minutes past. How many minutes have passed after 3 o'clock? So 20 minutes past 3 is your answer. Here is the question 2 in which you have to draw the hands of the clock. First part, 10 minutes to 7, the time is given. Now you have to first convert this time into figures. अभी ये words में दे रखा है, हमें figures में लिखना है. The time is 10 minutes to 7. 10 minutes to 7 means 7 we have not reached yet. अभी 7 o'clock नहीं बजे हैं. तो अगर 7 o'clock नहीं बजे हैं तो 6 o'clock हुआ है. एंड मिनट्स क्या है? 10 मिनट्स बाकी हैं. तो आप 60 माइनस 10 कर दो तो 50. इट मीन्स 50 मिनट्स हुई है. 6 बज के 50 मिनट्स हुआ है. सो यू हैव टू ड्रॉ दी हैंड्स अकॉर्डिंगली. 6 बज के 50 मिनट्स. 50 मिनट्स के लिए पहले हम हैंड्स ड्रॉ कर देते हैं. 50 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, यू विल गेट 10. So your bigger hand is on 10. Smaller hand will be between 6 and 7. But it will be close to 7 क्योंकि 7 बजने ही वाले हैं, बस 10 मिनट की देरी है. So your small hand will be between. It has crossed 6. It is reaching 7 but it has not reached 7 yet. तो 7 के पास होगा. And the hour hand will be a little smaller. तो 7 के आसपास होगा. 6 और 7 के बीच में, लेकिन 7 के पास. So this is how we show the time. 20 minutes to 8. The next part is 20 minutes to 8. जब minutes to 8 लिखा है मतलब ये next hour है. 8 अभी नहीं बजे हैं. तो अगर 8 नहीं बजे हैं तो 7 बजे हैं. 7 बज के कितने मिनट्स हुई हैं? 20 minutes are left for 8 o'clock. तो 60 में से 20 माइनस कर दीजिए 40. तो टाइम हुआ है 7:40. तो इस टाइम का 20 minutes to 8 का मतलब है 7:40. 7:40 हुआ है तो 40 पे अगर हैंड लगाएं हम, बिगर हैंड द मिनट हैंड 40 पर, 40 डिवाइड बाय 5 इज 8. सो बिगर हैंड इज ऑन 8. पहले बिगर हैंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है. स्मॉलर हैंड इज बिटवीन 7 and 8, लेकिन 8 के पास क्योंकि 8 बजने ही वाले हैं. सो स्मॉलर हैंड विल बी हियर. इट विल बी रीचिंग 8. उसकी लेंथ भी हम छोटी बनाएंगे. सो 7:40 यू रीड लाइक दिस. Let us go to the next part, F part, quarter to 8. Now quarter, as we have discussed in the previous class, quarter का मतलब होता है 15 minutes.
So quarter to 8 you can interpret as 15 minutes to 8. 15 minutes to 8, अभी 8 o'clock नहीं बचा है, 15 minutes बाकी हैं. When it is quarter to, the minute hand is on 49 and it is 7:45. So quarter to 8 का मतलब पहले समझ रहे, it is 7:45. क्यों है? क्योंकि 8 o'clock तो हुआ नहीं है, तो 7 o'clock है. एंड क्वार्टर टू, जब क्वार्टर टू पे हैंड होता है तो वो इट इज हैंड ऑन 9. सो 9 5 45. तो हमें मिल गया कि आवर हैंड विल बी ऑन 9. 9 5 45. क्वार्टर टू 8 o'clock अभी बजने ही वाला है, तो 8 पे प्रॉपर आपका स्मॉल हैंड नहीं होगा, लेकिन 7 और 8 के बीच में होगा, मगर ज़्यादा वो 8 की तरफ इंक्लाइन होगा. जी पार्ट, क्वार्टर पास्ट 3. क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर का मतलब ही होता है 15 मिनट्स. 15 मिनट्स पास्ट 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3:15 मिनट्स. सो क्वार्टर पास्ट 3 का मतलब हो गया 3:15. फर्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट. क्वार्टर पास्ट यानी कि यहाँ होगा हैंड. पास द मिनट्स व्हेन वी राइट, व्हेन द मिनट्स आर लेस देन 30. सो 3:15 वी हैव टू एडजस्ट. पहले मिनट्स हैंड कर लेते हैं. 15 को डिवाइड बाई 5 करेंगे. मिनट हैंड इज ऑन 3 एंड आवर्स इज ऑल्सो 3. तो आवर हैंड इज ऑल्सो ऑन 3, लेकिन वो थोड़ा सा 3 से आगे निकल गया होगा, क्योंकि 15 मिनट्स क्वार्टर आवर तो पास हो चुका है. सो 3 और 4 के बीच में होगा आपका आवर हैंड, लेकिन 3 से थोड़ा सा आगे निकल गया होगा. लेट अस सी हाफ पास्ट 11. हाफ पास्ट मीन्स हाफ आवर. हाफ आवर 30 मिनट्स पास्ट 11. 30 मिनट्स, इसका मीनिंग हो गया 30 मिनट्स पास्ट 11. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11 आवर्स हो चुके हैं और 30 मिनट्स हो गए हैं. 11:30 इज द टाइम. सो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट फॉर द मिनट हैंड. 30 मिनट्स को डिवाइड बाय 5 करेंगे 6. योर मिनट हैंड इज ऑन 6. मिनट हैंड लॉन्गर होता है तो बिल्कुल 6 के पास टच हो जाएगा. ठीक है. एंड हाफ आवर हैज पास्ड, तो 11 से आगे निकल चुका है हार हैंड, 12 पर नहीं पहुंचा, बिल्कुल एग्जैक्टली इन बिटवीन 11 and 12. So try to draw a small hand denoting the time between 11 and 12. So we will draw a smaller hand. ठीक है, smaller hand is our hand between 11 and 12. So few more parts are there. You can try it, and this exercise you will do in the book, completely in the book.